Dear 11th class mathematics students, Assalamu alaikum warahmatullah. Today we will do the important rule of differentiation that is called quotient differentiation. That we are supposed to find d by dx of u by v, where u and v are the functions of x. So let's suppose that our function y is equal to u by v. So as usual, let us give increments to x and y, u and v. So y plus delta y becomes u plus delta u divided by v plus delta v. This implies that our delta y is equal to u plus delta u divided by v plus delta v minus y. So delta y is equal to u plus delta u by v plus delta v minus u by v. Delta y is equal to, now taking LCM, v into v plus delta u cross multiplying v times u plus delta u minus u times v plus delta v. So let's open it. Implies that delta y is equal to uv plus v times delta u minus uv minus u times delta v whole divided by v into v plus delta u. Now you can see that uv, they are opposite sign, they will cancel. So delta y by delta x becomes v times delta u minus u times delta v divided by v into v plus delta u into 1 by delta x, because we are dividing forward by delta x. So limiting value delta x approaching 0, delta y by delta x is equal to limit delta x approaches to 0, v times delta u by delta x minus u times delta v by delta x whole divided by v into v plus delta u. So as it becomes v times delta u by delta x with limiting value minus u times delta x approaching 0, delta v by delta x whole divided by v times v plus delta u. As such, it becomes delta y by delta x equal to v times du by dx minus u times dv by dx whole divided by v square. Whole divided by, it becomes v square, because this delta u will tend to 0. So du by dx is equal to v times du by dx minus u times dv by dx whole divided by v square. This is one of the important rules of our differentiation in this. Now, so you can now let us take another this. For example, differential coefficient of sin x, cos x, tan x, cosec x, sec x. You can do, I will take one of these trigonometric ratios. So let us suppose that our fx is equal to cos of x. F dash x by definition, derivative of the function is by definition limit h approaches 0 or f of x plus h minus f of x whole divided by h. This is same method, h method or delta method. Both are same, considered as same. So limit h approaches to 0, cos of x plus h minus cos of x by h, because our function is equal to cos of x. So f of x plus h means cos of x plus h minus cos of x divided by h. So you see that cos p minus cos q is minus twice sin p plus q by 2 into sin of p minus q by 2. As such, f dash x is equal to minus twice sin of sum of the two angles x plus h plus x divided by 2 into sine of difference of the two angles x plus h minus x divided by 2 whole divided by h. So minus 2 times sine of x plus x means 2x by 2 means x plus h by 2 into sine of h whole divided by h. Now this h will be divided to h, denominator h जो है, क्योंकि वापस फिर आएगा माइनस लिमिट डेल्टा एक्स ऑफ 0 साइन ऑफ एक्स प्लस एच लिमिट साइन ऑफ h by 2, बिकॉज हम इसको 2 को फिर वापस ले सकते हैं न्यूमरेटर में, एक ही बात है. तो माइनस अब देते हैं यहाँ पर, ये देखिए h 0 बनेगा. सो यहाँ पर हमें आ गया एफ डैश एक्स इक्वल टू माइनस साइन ऑफ x इंटू 1, बिकॉज दिस इज ए सेकंड ऑर्डर इंटीग्रल लिमिट थीटा अप्रोक्स 0 साइन थीटा बाय थीटा इक्वल टू 1. यहाँ पर h, तो ये आएगा इसके बराबर. यहाँ पर हमने जो यहाँ पर एक थोड़ा मिस्टेक है, h by 2 यहाँ पर है, ये भी h by 2 है, h by 2 है. तो इस तरह से हमने इसका डेरिवेटिव निकाला कॉस का, दैट इज माइनस साइन ऑफ एक्स. इस तरह से यही उसूल अपना के आप कह सकते हैं डिफरेंशिएशन फॉर डी बाई डी एक्स ऑफ साइन ऑफ एक्स इज कॉस ऑफ एक्स, टेन का होगा सेक स्क्वायर एक्स. इस तरह से अगर आप चाहेंगे तो इसका कोसेक का आप निकाल सकते हैं, माइनस कोसेक एक्स माइनस कोसेक एक्स कॉट एक्स. इस तरह से ये आएगा. रूल बिल्कुल सेम है, ऐसे ही प्रोसीड करना है आपको, कोई प्रॉब्लम नहीं. सो हाउएवर हम जाएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जो इस किताब में है. नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर एग्जांपल हमारा सवाल एक है, इंपॉर्टेंट सवाल, आपको मुमकिन है ये कंफ्यूज करेगा, तभी मैंने टिपिकल क्वेश्चन उठाया. क्वेश्चन 6 फाइंड डी बाई डी एक्स ऑफ 1 प्लस एक्स डिवाइडेड बाई 1 माइनस 1 बाई एक्स. तो आपको याद रखना पड़ेगा कि हमने जो अभी किया था दैट डी बाई डी एक्स ऑफ
u by v is equal to v times du by dx minus u times dv by dx होल डिवाइडेड बाई वी स्क्वायर। यही रूल अपनाएंगे हम यहाँ पर। लेट अस सपोज दैट y इज इक्वल टू 1 प्लस 1 बाई एक्स होल डिवाइडेड बाई 1 माइनस 1 बाई एक्स। तो यही तो हम कहेंगे इसको dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू एज पर द रूल। देखिए v टाइम्स 1 माइनस 1 बाई एक्स टाइम्स d बाई डी एक्स ऑफ 1 प्लस 1 बाई एक्स। अब माइनस u टाइम्स मैंने 1 प्लस 1 बाई एक्स टाइम्स डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर d बाई डी एक्स ऑफ 1 minus 1 by x whole divided by denominator square. Our denominator is 1 minus 1 by x whole square. This becomes 1 minus 1 by x into, now differentiation for this part, इसका 0 आएगा 0, तो 1 by x का अगर हम देखेंगे ये minus 1 by x square आएगा। इसको भी हम ये उसूल अपनाएंगे एवरेज, तो यही आएगा माइनस 1 प्लस 1 बाई एक्स इंटू, अब चूंकि यहाँ पर 0 माइनस अपना है ही तो इसका माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर आएगा, इसका डिफरेंशिएशन होल डिवाइडेड बाई 1 माइनस 1 बाई एक्स होल स्क्वायर। सो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, दिस विल बी 1 माइनस 1 बाई एक्स इंटू, आप देख सकते हैं यहाँ पर चूंकि ये पार्ट जो है माइनस टाइम्स या 1 बाई एक्स स्क्वायर लिखूंगा मैं, प्लस या माइनस माइनस प्लस, प्लस इंटू माइनस इज माइनस, माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर टाइम्स 1 प्लस 1 बाई एक्स होल डिवाइडेड बाई 1 minus x whole square. Without going into further calculations, this much is also sufficient for its differentiation. So this is its answer for it. अब चाहेंगे तो आप इसको फर्दर सिंपलीफाई कर सकते हैं। सिंपलीफाई करने के लिए आपको यहाँ चूँकि टाइम कम होता है, आपको भी सिंपलीफाई इसको कर सकते हैं, खोल सकते हैं। तो ये अल्टीमेटली इसके बराबर आता है dy बाई डी एक्स इक्वल टू -2/1, ये x -1 होल स्क्वायर आएगा अल्टीमेटली। ये आंसर इसका यहाँ ये भी ठीक है, लेकिन इसको फर्दर सिंपलीफाई आप कर सकते हैं इस फॉर्म में लाने के लिए। सो दिस इज one more question we will do. For example, you have a question, say question number 10 of this exercise, same exercise. So, question number 10. Questioner says that question number 10 या इससे भी कोई बड़ा सवाल हम देखेंगे। फॉर एग्जाम्पल ये क्वेश्चन है, आइडेंटिकल क्वेश्चन हैं, इसमें कोई मसला नहीं है, सेम क्वेश्चन है। फॉर एग्जाम्पल ये है a question in this question number 30, a typical question number 30. Find dc of differential coefficient of x divided by sine of x whole raised power n. So हम क्या कहेंगे इसको, y is equal to x divided by sine of x, क्योंकि ये पावर जो है x को नहीं है बल्कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो को है, यहाँ पर लेंगे एन ऐसे। सो हम कहेंगे इस तरह से, ये रूल याद रखना पड़ेगा, डी बाई डी एक्स ऑफ यू बाई वी, रिमेंबर दैट इट इज फॉर्मूला वी टाइम्स डी यू बाई डी एक्स माइनस यू टाइम्स डी वी बाई डी एक्स होल डिवाइड बाई डिनोमिनेटर स्क्वायर। ये अप्लाई करेंगे इसको। सो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू वी टाइम्स एन साइन ऑफ एन एक्स, डिफरेंशिएशन फॉर न्यूमरेटर दैट इज 1 माइनस एक्स टाइम्स डिफरेंशिएशन फॉर दिस, तो यहाँ पर मैं ये पावर की डिफरेंशिएशन, सो n टाइम्स साइन ऑफ एक्स रेज़ पावर n - 1 इंटू, अब साइन की डिफरेंशिएशन कॉस ऑफ एक्स होल डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर स्क्वायर, होल डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर साइन ऑफ एन एक्स होल स्क्वायर। ये मैं फिर बताऊँ आपको, डिफरेंशिएशन जो है इसमें यू बी वी फॉर्म है। सो वी टाइम्स साइन ऑफ एक्स टाइम डिफरेंशिएशन फॉर न्यूमरेटर इज 1 माइनस एक्स इंटू यानी यू इंटू डिफरेंशिएशन फॉर डिनोमिनेटर। अब यहाँ पावर है ना, सो पहले पावर डिफरेंशिएशन करेंगे साइन की। सो एन टाइम्स साइन ऑफ एन -1 एक्स, तो अब साइन सिर्फ साइन की दैट इज कॉस ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई डिनोमिनेटर स्क्वायर दैट इज साइन ऑफ एक्स। इसको थोड़ा सिंपलीफाई करना होगा और कुछ नहीं है। तो देखिए आप न्यूमरेटर में आएगा साइन ऑफ एन एक्स माइनस एक्स इंटू, हम कहेंगे इस तरह से एन एक्स, ये एन एक्स इंटू कॉस ऑफ एक्स इंटू साइन ऑफ एक्स
यहाँ पर पावर n-1 डिवाइड बाई साइन ऑफ, देखिए पावर के लिए 2 बार आएगा, सो 2n इंटू एक्स, तो दिस मच इज और फर्दर सिंप्लीफिकेशन जो है वो भी कर सकते हैं आप इसको। आप देखिए कॉमन निकालेंगे साइन ऑफ, इसमें अगर साइन ऑफ n ये कॉमन निकालेंगे तो नीचे आएगा, तो आपका डिनोमिनेटर में साइन ऑफ x माइनस एन एक्स इंटू कॉस ऑफ x डिवाइडेड बाई यहाँ पर साइन ऑफ n+1 इंटू एक्स, इसका एक्चुअल लॉस पर आंसर आएगा आफ्टर सिंप्लीफिकेशन ऑफ साइन ऑफ nx। यहाँ पर आप ये कॉमन भी निकाल सकते हैं, तो ये आएगा। मेरे ख्याल में आज के लिए काफ़ी है। सेक्शन फॉर टुडे।